Hello everyone, I hope you all are doing well and you are following the lecture Ionic Equilibrium. If you are getting any problem, please revise it and please be thorough with the concepts. Okay, last lecture we were discussing about Arrhenius and Bronsted concepts of acid and bases. Okay, so different theories has been theories has been proposed. Okay, so all the theories which have been proposed have different limitations and different advantages. Okay, so the first theory was Arrhenius concept. In Arrhenius concept, what was told that in aqueous solution, this is something that is called aqueous solution, very important. So in aqueous solution, if some species gives H plus ion, then we call them as base. We call them as acids. H plus ion जो देता है in aqueous solution, we call them as acids. Then in aqueous solution, the species which gives OH negative ion, we call them as bases. That was a very fundamental concept given. And after that we have something called Bronsted theory. In Bronsted theory, what was happening? The concept of aqueous solution was not there. Okay, so they neglected that. Okay, no need to have this particular aqueous solution. We can think about the molecules itself. Okay, so after that the Bronsted told that the species which are H plus donor, which donates H plus ion, which gives H plus ion out, are called acids, and the species which can take H plus ion, which can accept H plus ion, are called bases. Okay, so this was the basic very better concept than your this one Arrhenius. Okay, then we came across that conjugate acid base pair. Okay, that is differ, that conjugate acid base pair differ only by one H plus ion. Please remember, we have done many problems for that, how which of them are conjugate acid, which of them are conjugate base, and either conjugate acid and base. Okay, so different concept we have already done. So after that we were talking about amphiprotic and amphoteric. So there are the basic small difference between two. All the amphiprotic substance are amphoteric in nature, but no, all the amphoteric substance cannot be, need not be your amphiprotic substance species. Okay, so this is all very clear. Let's talk about the Lewis concept. Okay, so let's Lewis basic concepts are there. Lewis very small Lewis concept of acid and base. Okay, so what exactly this concept? This is also called electronic concept. This is electronic concept, huh? Electronic concept. Why? Actually, what happened now? There are many species which don't have H plus ion. See, we were talking about H plus ion only in Arrhenius and Bronsted concept. We were talking about H plus ion, OH minus ion, that's all. Nothing is we are talking about. But there are some molecules which can act as acid and base, but they cannot have H plus ion or OH negative ion. Okay, for that only the ultimate concept, ultimate theory given by Lewis. And what was that? Electronic concept. And what that? Electron acceptor, or let's say electron donor. Electron donor are called Lewis base. Lewis base. Electron donor. So sorry, not electron, electron pair. Let's write it electron pair. So electron pair donor are called Lewis base. So all those species which have electron, which can have lone pair, can donate the electron to some other species, can make a coordinate bond using the that particular lone pair available. So what can you tell me different molecules which can have lone pair available? Simple molecule is water. So H2 have what? Electron pair, so it can donate this electron pair to some other species, and you have seen that we have something called H plus. So what, there is a bond formation due to this lone pair. Okay, so due to this lone pair, this bond is has been made. So we can say that this H2 acts as Lewis base. Okay, after that we have something called ammonia. Okay, ammonia can also act as Lewis base. Then we have one PH3. This can also act as Lewis base. So Lewis base acts why? Because they have one electron pair available.
to make a coordinate bond with other species. Is this clear to everyone? Electron pair has to be there to be the Lewis base. Okay, now what is Lewis acid? Lewis acid, they are called electron pair acceptor. Electron pair acceptor. How can they can be electron pair acceptor? There are different ways, so we call them as Lewis acids. Lewis acids. So we can have different method. What are the different method to have to become Lewis acids? They can be electron deficient. Electron deficient. What does it mean? क्या हो सकता है इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, जिसके पास पैसे नहीं है, उसको पैसे लेने की चाहत होगी, तो ये बंदा इलेक्ट्रॉन पेयर जिसके पास नहीं होता है, तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं स्पेसिस, दे कैन इजीली टेक इलेक्ट्रॉन एंड एक्सेस Lewis acid. So let's electron differences will be have something called BF3, okay, then PCl3, okay, then we have something called boric acid. Okay, so these all are called Lewis acid because they are electron deficient. उनके पास जो है, जैसे बोरोन है, बोरोन के जो आउटर जो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर पा रहा, क्यों? क्योंकि इसके जो 6 इलेक्ट्रॉन है आपके लास्ट शेल में, ठीक है। सिमिलरली आपका यहाँ भी बोरिक एसिड में कुछ ऐसे, मैं आपको इसके रिएक्शन भी बताता हूँ कि बोरिक एसिड क्या है, एप्रोटिक एसिड है। प्रोटिक एसिड मतलब प्रोटॉन अपने मॉलिक्यूल से दे, एप्रोटिक एसिड का मतलब कि प्रोटॉन अपने मॉलिक्यूल से नहीं दे पाता, वो कहीं और से खींच के लाता है। So this is boric acid is very important. Boric acid is monobasic aprotic Lewis acid. Monobasic aprotic Lewis acid. लेविस एसिड का क्या मतलब है? ये इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट करता है। एप्रोटिक का क्या मतलब है? ये जो प्रोटॉन है, जो H+ आयन है, वो अपने मॉलिक्यूल से रिलीज नहीं करता है, वो वाटर मॉलिक्यूल से रिलीज करता है। मैं बताता हूँ कैसे। एंड व्हाट इज दैट? एप्रोटिक मैंने इसलिए बोला क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स क्या है, अपने मॉलिक्यूल से ना रिलीज करके वाटर से रिलीज करता है। और मैंने इसको मोनोबेसिक बोला। मोनोबेसिक का मतलब एक H+। कल तो बताया था बेसिसिटी, ठीक है। बेसिसिटी का क्या मतलब है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, कितने हाइड्रोजन वो दे रहा है। H2SO4 के पास 2 होता है, तो क्या हो, डाइबेसिक एसिड। H3PO4 ट्राइबेसिक एसिड। HCl मोनोबेसिक एसिड। BOH थ्राइस मोनोबेसिक एसिड। क्लियर? ओके, सो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो ये बंदे क्या होंगे, लेविस एसिड कहलाते हैं। उसके बाद और क्या मेथड है कि पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव आयंस। कैसे कैसे पॉजिटिव आयंस? पॉजिटिव हैं तो इनको नेगेटिव चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर चाहिए, सो दे कैन आल्सो एक्ट एज क्या, लेविस एसिड्स। जैसे सिंपल सोडियम आयन हो गया, आपका हो गया मान लो पोटेशियम आयन है, कैल्शियम पॉजिटिव है, एंड सो ऑन। तो ये क्या है, ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव आयंस है। दे कैन एक्ट एज लेविस acids. Please remember that they can act as Lewis acids. Similarly, you can see electron pair donor. You have chloride. Okay. They have electron pair. They can donate. Okay. Similarly, अब क्या है और क्या possible ways हैं कि vacant d orbital. आप शायद ये सारी चीजें पढ़ोगे और आपके केमिकल बॉन्डिंग में, पर फिर मैं बता दूं, वैकेंट डी ऑर्बिटल जिनके पास होते हैं वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो जो बंदा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है उसको बोलते हैं लेविस बेस। सो वी कैन हैव डिफरेंट एग्जांपल फॉर दिस। लेट्स राइट इट PCl3, और लेट्स राइट PCl5. PCl5 कैन आल्सो एक्ट एज लेविस, आपके क्या कहते हैं, सॉरी PCl3 एक्चुअली, PCl3 रियल, सॉरी दिस PCl3. देन व्हाट इज SF4. So SF4 क्या है, आपका इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता है। क्या है, SF4 के पास एक वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, वो क्या कर सकता है, SF4 8 इलेक्ट्रॉन मिल चुके हैं इसको, फिर भी इसके पास एक वैकेंट, एक खाली रूम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ सकता है। तो जब इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो इलेक्ट्रॉन जब ले सकता है, जब इलेक्ट्रॉन ले सकता है तो उसको लेविस बेस बोल सकते हैं। ये क्या सही है? अब पूछोगे कैसा, वाटर तो आपने बताया था कि एम्फोटेरिक की नेचर होता है, वो एसिड बेस दोनों का काम करता है। जी हाँ, पर फ्रॉम द कॉन्सेप्ट, फ्रॉम द व्यू ऑफ लेविस, वाटर इज नो लॉन्गर द एसिड। वाटर जो है इलेक्ट्रॉन पे एक्सेप्ट नहीं कर सकता।
So water is not the Lewis acid. Please remember that water H2O is not the Lewis acid. From H2O क्या ही आपका Lewis acid नहीं है. H2O आपका कौन सा एसिड है? H2O आपका ब्रॉन्स्टेड एसिड है. H2O आपका अर्हेनियस एसिड है. पर लेविस कॉन्सेप्ट के आधार पे आपका वाटर जो है H2O है वो लेविस एसिड नहीं है. प्लीज रिमेंबर, क्योंकि दिस क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड. दिस इज वेरी हाई प्रोबेबिलिटी टू आस्क दिस प्रॉब्लम. आपके इनमें से कौन सा लेविस एसिड नहीं है, एंड वाटर विल बी दैट ऑप्शन. प्लीज रिमेंबर दैट. ओके, तो ये सारी चीज समझ में आ गई है क्या कि इसमें से कौन सा लेविस एसिड होता है और इसमें से कौन सा लेविस बेस होता है. देन इनमें से कौन सा ब्रॉन्स्टेड एसिड, कौन सा ब्रॉन्स्टेड बेस है, एंड कौन सा अर्हेनियस बेस है. ओके, आफ्टर दैट हम लोग बात करते हैं किसकी, ऑटो प्रोटोनेशन की. ऑटो आयोनाइजेशन. ऑटो आयोनाइजेशन या इसको आप क्या बोल सकते हो, ऑटो प्रोटोनेशन बोलते हो या सेल्फ आयोनाइजेशन बोल सकते हो. ठीक है, एग्जैक्टली क्या हो रहा है, जैसे आपके पास वाटर मॉलिक्यूल है, तो वाटर मॉलिक्यूल क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल लिक्विड फॉर्म है. वाटर मॉलिक्यूल एक अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकता है, अपने ही मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा, अपने ही मॉलिक्यूल को आयोनाइज कर देगा. अपने ही मॉलिक्यूल को वाटर आयन, यानी इसको किसी और की आवश्यकता नहीं है, ये खुद में खुश है, अपने ही इसको किसी और, ये आत्मनिर्भर है. हाँ, तो ये कहा है आत्मनिर्भर है. तो ये क्या कर रहा है, एक जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, इसके पास क्या है, लोन पेयर है. तो क्या करेगा, दिस इज OH. तो ये क्या करेगा, बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा और ये क्या करेगा, टूट जाएगा. तो क्या कर रहा है, एक ही अपने वाले वाटर मॉलिक्यूल ने खुद के वाटर मॉलिक्यूल को क्या आयोनाइज कर दिया. एंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग हियर इन द इक्विलिब्रियम, व्हाट वी आर गेटिंग, H3O पॉजिटिव aqueous medium and OH negative in aqueous medium. Is this clear to everyone कि क्या हो रहा है आपका, खुद का मॉलिक्यूल क्या कर दिया है, आपको बदल दिया है अपने ही मॉलिक्यूल को आयंस में, और इसी को बोलते हैं ऑटो आयंस. खुद से किसी की आवश्यकता नहीं पड़ी, खुद से एक दूसरे को आयोनाइज कर दिया. सो ऑटो आयोनाइजेशन या सेल्फ आयोनाइजेशन या सेल्फ प्रोटोनेशन. प्रोटोनेशन का मतलब क्या है, प्रोटोनेट हो गया. ये बंदा था, इसके पास एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आ गया, दैट इज कॉल्ड द प्रोटोनेशन. सो दिस इज कॉल्ड ऑटो प्रोटोनेशन. यहाँ पे क्या एक प्रोटॉन आ गया एक्स्ट्रा. अब थोड़ा सा जो हमने कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया था, देखते हैं क्या हो रहा है. दिस पार्टिकुलर स्पेसिस, दिस इज एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. दिस पार्टिकुलर स्पेसिस एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन. तो जो एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, उसको क्या बोलते हैं, सॉरी, दिस पार्टिकुलर स्पेसिस एक्सेप्टिंग द H+. सो दिस इज बेस. जो H+ देता है, दिस इज एसिड. क्लियर है. अब देखिए ये एसिड है, तो ये क्या हो जाएगा, ये बंदा क्या हो जाएगा बताइए, H+ देने के बाद ये हो जाएगा कंजुगेट बेस. किसका, इसका. सिमिलरली ये बंदा क्या है, बेस है, इसने एक H+ ले लिया है, तो ये बंदा क्या हो जाएगा आपका, दिस इज कंजुगेट एसिड हो जाएगा. ठीक है, तो ये ठीक है, तो ये क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है, और ये दोनों क्या है, कंजुगेट एसिड बेस पेयर है. ऐसे सारे रिएक्शन में आपको देखने को मिलेगा. आप अपना काम कीजिए, आप कोशिश करते रहिए, अगर पूछा नहीं भी गया हो तो कोशिश कीजिए समझने का कि आखिर कंजुगेट एसिड बेस पेयर कहाँ है, कैसे है, समझें. हाँ, ओके. तो ये क्या है, आप जोड़िए कि वाटर में ही ऑटो प्रोटोनेशन, ऑटो आयोनाइजेशन नहीं. हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया का एग्जांपल भी मैंने आपको दिया ही था. अमोनिया है, तो क्या होता है अमोनिया में, अमोनिया एक मॉलिक्यूल है, दूसरा अमोनिया है, दोनों अपने फॉर्म में है. क्या ये क्या किया, इसने, इसका पास भी लोन पेयर होता है. ठीक है, तो इसने इसके हाइड्रोजन पे अटैक किया. व्हाट वी आर गेटिंग, अमोनियम आयन aqueous and NH2 नेगेटिव अगेन aqueous. सो क्या हो गया है, फिर से ऑटो प्रोटोनेशन का जो प्रोसेस है वो चल रहा है. तो आपको क्या देख सकते हो कि ये जो बंदा है ऑटो प्रोटोनेशन यानी कि सिर्फ एक दूसरे को प्रोटोनेट कर पा रहा है. ठीक है, अब देखिए इस रिएक्शन को, इस पार्टिकुलर रिएक्शन क्या लिख सकते हो, 2H2 तो 2H2O
गिविंग क्या H3 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव लिखते हैं क्या, ठीक है। और आपको क्या बताया है मैंने कि H3 पॉजिटिव को क्या H प्लस भी लिख सकते हैं, तो आप इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। ओके, सो ये जो पार्टिकुलर रिएक्शन है, जो हमने ऊपर लिखा है ऑटो प्रोटोनेशन का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको जहां भी अगर हम वाटर के ऑटो प्रोटोनेशन की, वाटर के ऑटो आयोनाइजेशन की बात करेंगे, हम इसी रिएक्शन को लिखेंगे, ठीक है, इसी रिएक्शन को लिखेंगे। इसको आप एक्वस से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या है, जब भी हम ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर की बात करेंगे तो हम हमेशा इस रिएक्शन को लिखना पसंद करेंगे। इन दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। आपको मैंने बताया था कि हाइड्रेटेड फॉर्म में, हाइड्रेटेड फॉर्म में, ठीक है। तो क्या है कि जब भी आपसे पूछा जाएगा कि आप ऑटो आयोनाइजेशन ऑफ वाटर लिखना है आपको, तो कौन सा रिएक्शन लिखेंगे, ये लिखेंगे, और यहाँ से हम आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर और डिफरेंट डिसोसिएशन कांस्टेंट और सारी थिंग्स की बात करना शुरू करेंगे। तो ठीक है, ये समझ में आया कि वाटर क्या है, एग्जिस्ट करता है कैसे, H प्लस आयन OH नेगेटिव आयन के रूप में कर सकता है, और सिंपल हाइड्रेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो जब भी आपसे पूछा जाए तो आप क्या इस रिएक्शन की बात करोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, इस पार्टिकुलर रिएक्शन के बाद बात करते हैं हम किसकी, बताइए, आयोनिक इक्विलिब्रियम में जिसकी आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रोलाइट्स। बात करेंगे किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की बात करेंगे। तो सारे लोग हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, अब ये बताइए, सारे लोगों ने कंडक्टर्स के बारे में सुना ही होगा, कंडक्टर्स, बहुत सारे कंडक्टर्स, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, फिजिक्स में पढ़ा भी है। ये कंडक्टर्स ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं। तो ऐसे सारे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करवाते हैं आर कॉल्ड कंडक्टर्स। जो बहुत ही आसानी से इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिसमें हो जाता है, दैट्स कॉल्ड द गुड कंडक्टर। जो रेसिस्ट करता है उसको बोलते हैं बैड कंडक्टर। ओके, सो सबसे पहले तो ये बताइए कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहा है वो क्यों कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर क्यों रहा है। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का सिंपल सा रीजन आप लोगों को पता है कि सर आप बताते हो कि उसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जनरली कंडक्टर कौन अच्छे होते हैं, मेटल्स, और द मेटल्स आर गुड कंडक्टर बोला जाता है। क्यों, क्योंकि उनके पास जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के कारण, फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी मूव करती है। या क्या बोलते हो कि उसके पास चार्ज स्पेसिस होते हैं, चार्ज स्पेसिस होते हैं। ये चार्ज स्पेसिस के कारण क्या होता है कि आपके पास इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, आपको समझ में आता है कि फ्लो ऑफ चार्ज स्पेसिस फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो चार्ज स्पेसिस होती है। तो ये तो आपने बताया कि सॉलिड्स की बात है, बहुत सारे ऐसे सॉलिड्स हैं जो कंडक्टर का एग्जांपल बताते हैं। ऐसा क्या देखा गया कि कभी-कभी जो ऐसे बहुत सारे जो एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं, एक्वस सॉल्यूशन जो हैं ये भी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को, एक्वस सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि जो चार्ज स्पेसिस आपके मेटल में था या जो चार्ज स्पेसिस आपके सॉलिड में था, इसका ये मतलब है कि इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में भी कुछ ना कुछ चार्ज स्पेसिस होने चाहिए, ठीक है। चार्ज स्पेसिस किसमें, सॉल्यूशन में भी होने चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, नहीं तो कैसे करेगा। वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल है कि अगर कंडक्ट करना है तो आपको चार्ज स्पेसिस होना चाहिए। तो चार्ज स्पेसिस क्या हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन का भंडार हो यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रॉन का भंडार हो, नहीं तो क्या हो, आयंस हो। यू नो दैट आयंस, क्या आयंस पे क्या होता है, चार्ज होता है। मॉलिक्यूल्स पे, न्यूट्रल मॉलिक्यूल पे तो कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल एटम पे तो कोई चार्ज नहीं होता, पर आयंस पे चार्ज होता है। यानी कि यस, इस पार्टिकुलर सॉल्यूशन में आयंस होंगे तभी ये इलेक्ट्रिसिटी बताएगा, दिखाएगा, कंडक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर आपका कोई सॉल्यूशन कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी को, इसका मतलब उसमें आयंस होंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स क्यों है इलेक्ट्रोलाइट्स, क्योंकि दिस इज द प्रेजेंस ऑफ आयंस। ओके, सो व्हाट आर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स आर द सब्सटेंस
which gets dissociated, which converted to ions in water। जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो क्या होता है, वो आयंस के रूप में टूट जाता है, आयंस के रूप में टूट जाता है। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। फिर से समझिए, जो सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व करने के बाद क्या है, आयंस में टूट जाए, उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलेंगे। क्या सही है, आयंस में टूट गया तभी तो वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है, अब क्या है कि जब आयंस में टूट गया है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो पूरा टूट जाए या थोड़ा सा कम टूटे, हल्का टूटे, एकदम हल्का टूटे, यानी कि या तो बहुत अच्छा कंडक्टर बने या वो बहुत ही खराब कंडक्टर बने। सो दिस पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट, दिस इज इलेक्ट्रोलाइट, दिस इलेक्ट्रोलाइट इज क्या हो गया, इसको दो भागों में बांटा गया, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, strong electrolyte and weak electrolyte। ठीक है, strong electrolyte and weak electrolyte। अब बोलोगे कि सर ऐसा कैसे है कि सब्सटेंस, मान लीजिए कोई सब्सटेंस AB है, ठीक है, AB है, और ये जो सब्सटेंस है इसको मैंने बोला कि ये एक इलेक्ट्रोलाइट है। व्हाट डज इट मीन, जब AB को वाटर में डाला जाएगा तो वह AB क्या होगा, डिसोसिएट होके A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव आयंस बनाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो आप बोलोगे सर ऐसा कैसे है कि AB जो है सो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, कैसे वो आयन में टूट जाएगा, क्यों टूटेगा भैया, क्यों टूटेगा, उसकी क्या जरूरत है आयन में टूट जाने की। तो सिंपल सी बात है, वाटर मींस मैंने अभी प्रोटिक सॉल्वेंट की बात की है, और वाटर के पास एक ऐसा क्या होता है, पावर होता है, एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, दैट इज द डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जब मान लीजिए आपने AB को, ये पॉजिटिव बी नेगेटिव, इसको वाटर में डाला, इसको भी वाटर में डाला, तो होगा क्या कि ये पॉजिटिव वाला है, तो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, क्या यहाँ पे लोन पेयर्स होते हैं, आपको पता ही है इसके। और फिर सिमिलरली जो है यहाँ पे ऐसे आ जाएगा, हाइड्रोजन, क्या है, क्योंकि आपको पता है OH, ये क्या होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये दोनों क्या है, जब AB था, जब AB को नीचे डाला गया तो कुछ मॉलिक्यूल्स B को खींचने लगे, कुछ मॉलिक्यूल्स A को खींचने लगे, तो क्या हो गया, ये आप केमिकल बॉन्डिंग में बड़े ही आराम से पढ़ोगे, मैं इसलिए विस्तार में नहीं बताता हूं कि कुछ मॉलिक्यूल्स ने A को इधर खींचना शुरू किया, कुछ मॉलिक्यूल्स ने B को इधर खींचना शुरू किया, और अंत में क्या हो गया कि व्हाट वी गॉट, AB हमें क्या मिला, AB मिला A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव। ठीक है, अब ये बंदे क्या है, अलग अलग हो गए हैं, पॉजिटिव है, एक नेगेटिव है, चार्ज स्पीशीज है, तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को कैरी करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कैरी करेगा, यानी कि हमें कंडक्शन दिखाएगा, तो इसलिए क्या बोलते हैं, ये बंदा क्या हो गया, ये बंदा आपका हो गया इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफरेंट नेचर होते हैं, कुछ क्या है इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही अच्छा कंडक्ट करता है, कुछ इलेक्ट्रिसिटी खराब कंडक्ट करता है। तो वो बंदा, आपके पास जितने आयंस होंगे, सिंपल सी बात है, बेसिक कॉन्सेप्ट, जितने ज्यादा आयंस उतने ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है कि जितने आयंस बनेंगे, जितने ज्यादा आयंस बनेंगे वो उतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जितने कम आयंस बनेंगे वो उतना वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। वेरी सिंपल। तो क्या है, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स है, ये जो AB की मैंने बात की है, ये क्या है, ये जितना ज्यादा आपका A पॉजिटिव B नेगेटिव बनेगा वो क्या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा, और जितना कम बनेगा वो आपका उतना वीक इलेक्ट्रोलाइट कहा जाएगा। तो बात करते हैं आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है कि ये क्या है, कंप्लीट डिसोसिएट होता है, कंप्लीटली आयोनाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए आपने 10 मॉलिक्यूल ऑफ AB लिया है, 10 के 10 क्या हैं आपके, 10 A पॉजिटिव और 10 B नेगेटिव बना देंगे, यानी कि सारे के सारे आपके आयोनाइज कर जाएंगे। ठीक है, सारे आपके AB क्या है, आयोनाइज कर जाएंगे, इसलिए क्या है कंप्लीटली बोलते हैं। यानी कि अल्फा जो वैल्यू है, व्हाट इज अल्फा, यू नो, अल्फा इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की नाम सुने थे हमने, यहाँ पे क्या है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन।
डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। ये क्या बोलते हैं 100% आयोनाइज्ड, ठीक है 100% आयोनाइज्ड, ठीक है। सो क्या है, अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट 1 आ जाती है। अल्फा क्या होता है, ऑलमोस्ट क्या होता है 1 के बराबर हो जाता है, यानी कि सारे के सारे क्या हो गए, डिसोसिएट कर गए। इसके एग्जांपल्स अगर आप देखने की बात करो तो वी हैव स्ट्रॉन्ग एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, H2SO4, HClO4, देन HI, HBr, HCl, ये सारे के सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। और जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। कुछ चीज़ें आपको रिमेंबर करनी पड़ेगी प्लीज़, अगेन आई एम सेइंग, कुछ चीज़ें आपको याद रखना पड़ेगा कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। सिमिलरली जो आपके स्ट्रॉन्ग बेस हैं, स्ट्रॉन्ग बेस भी क्या करते हैं, जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, फिर आपका मान लीजिए कि KOH है, ठीक है, फिर आपका क्या है मान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सारे जो स्ट्रॉन्ग बेस हैं वो भी क्या करते हैं, वो भी आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का काम करते हैं। सो ऑल द स्ट्रॉन्ग बेस एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। देन जितने भी आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं, सॉल्युबल सॉल्ट्स, और जितने भी सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं ऑल एक्ट एज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। जितने भी आपके सॉल्युबल सॉल्ट्स हैं सब के सब क्या करेंगे, ऑल एक्ट एज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। आप बोलोगे सर मुझे पता कैसे चलेगा कि चीज़ें कौन से सॉल्ट सॉल्युबल है कौन से नहीं है। चिंता मत की, जब मैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात करूंगा, सॉल्युबिलिटी की बात करूंगा, तो यू विल लर्न अबाउट दैट कि क्या एग्जैक्टली आपके कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होते हैं कौन से नहीं होते हैं। मीन में मैं आपको बता दूं, जितने भी एल्काली मेटल्स के जो सॉल्ट होते हैं, एल्काली मेटल्स के सॉल्ट, ऑल द एल्काली मेटल्स के सॉल्ट, एल्काली मेटल के सॉल्ट, फिर जितने भी सॉल्ट हैं अमोनियम सॉल्ट, जितने भी अमोनियम सॉल्ट हैं, ओके, जितने भी नाइट्रेट, ऑल नाइट्रेट सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर। प्लीज रिमेंबर ऑल, विदाउट नो एक्सेप्शन। हमारे पास जितने भी अमोनियम, जितने भी आपके नाइट्रेट, जितने भी अगेन आई एम एम्फसाइजिंग, जितने भी नाइट्रेट के सॉल्ट्स होते हैं ऑल आर सॉल्युबल इन वाटर। प्लीज रिमेंबर, ओके। सो जितने भी नाइट्रेट के जो सॉल्ट होते हैं सब के सब क्या होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। तो जितने भी नाइट्रेट के सॉल्ट हैं सॉल्युबल हैं, इट मीन्स कि आपका जो नाइट्रेट का सॉल्ट होगा वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। तो आपको समझ में क्या आया कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइज्ड। जैसे मान लीजिए कि आपका क्या है, HCl है। HCl को अगर आप वाटर में रखोगे क्या होगा, HCl कंप्लीटली H+ आयन देगा और क्लोराइड आयन देगा। सिमिलरली मान लीजिए कि आपके पास क्या है, AgNO3 है, AgNO3 एक्वस मीडियम में डाला, क्या हो जाएगा, AgNO3 कंप्लीटली आपके Ag पॉजिटिव देगा एंड NO3 नाइट्रेट आयन देगा, ठीक है। उसके अलावा मान लीजिए कि आपका क्या है, NaCl है, एक्वस में डाला तो क्या हो गया, NaCl एक्वस में डाला तो क्या हो गया, कंप्लीटली यू विल गेट Na पॉजिटिव आयन एंड क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड। सो ये क्या है कि आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि एग्जैक्टली किसकी बातें कर रहे हैं। ये जो सॉल्ट है, जैसे अगेन आई टोल्ड यू, नाइट्रेट, जितने भी नाइट्रेट सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। और जो सॉल्युबल होते हैं वो कंप्लीटली डिसोसिएट करेंगे, कंप्लीटली आयोनाइज करेंगे, और आयोनाइज करके क्या बनाएंगे, आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। NaCl जितना है, NaCl क्या कंप्लीटली डिसोसिएट करके, कंप्लीटली आयोनाइज करके आपका क्या है, क्लोराइड बनेगा। ठीक, जो वर्ड है डिसोसिएट, मैं बार बार एक दूसरे के साथ यूज कर दे रहा हूँ, दैट इज द डिसोसिएशन एंड आयोनाइजेशन। तो बेसिक डिफरेंस है उन दोनों के बीच, बेसिक क्या डिफरेंस है ये मैं बता दूं कि जो बंदा ऑलरेडी आयंस के रूप में है, जैसे NaCl ऑलरेडी आयन के रूप में रहता है, NaCl Na पॉजिटिव में क्लोराइड के आयन के रूप में रहता है, अगर आप उसको सॉल्यूशन में डालोगे तो वो क्या करेगा, वो क्या दूर दूर चला जाएगा, ठीक है। तो वो आयंस बन नहीं रहा है, आयंस के रूप में है पर वो अलग हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन, ठीक है। पर जो एसिड्स हैं, एसिड जैसे CH3COH की बात करो, CH3COH की बात करो, ये क्या है, ये अपने आयंस के रूप में नहीं रहता, बॉन्ड फॉर्म रहता है,
ठीक है। क्या इसमें बॉन्ड फॉर्म रहता है, तो ये किसके रूप में रहता है, बॉन्ड फॉर्म की रहता है। जब आप इसको वाटर में डालोगे तो कैसा हो जाएगा, ये CH3COO नेगेटिव एंड H+ के रूप में, यानी कि आयन बना है अभी अभी नया बन के निकला है आयन, इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक है। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड क्या है, डिसोसिएशन। प्लीज रिमेंबर देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एंड डिसोसिएशन। डिसोसिएशन मतलब ऑलरेडी आयंस हैं, वो अलग हो गया, डिसोसिएट हो गया। और जो आपका एसिड है, जैसे मैंने आपको ये बताया एसिटिक एसिड, ये आयंस के रूप में नहीं है, इसका बॉन्ड फॉर्म है ऑलरेडी। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड है, पर जैसे ही आपने डाला वाटर में, अपने सॉल्वेंट में डाला, ये आयंस में बदल गया, आयंस के रूप में आ गया। सो ये आयंस के रूप में आया, इसलिए इसको आयोनाइजेशन बोलते हैं। तो ये जो बेसिक चीज है उसको समझिए। उसके बाद बात करते हैं हम किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। सो अब बात करते हैं किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है, सिंपल सी बात है। क्या है, ये कंप्लीटली आयोनाइज हुआ था, तो ये क्या है, ये पार्शियली आयोनाइज होगा। ये क्या होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा, पार्शियली आयोनाइज होगा। ठीक है। और जो अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1 से कम होगी। अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 से कम होगी, यानी कि क्या है, इसका जो परसेंटेज डिसोसिएशन होगा वो बहुत ही कम होगा। ठीक है, वो क्या है, परसेंटेज डिसोसिएशन बहुत ही ज्यादा कम होगा। अराउंड देखो, वीक एसिड की बात जनरली करते हैं, जो भी वीक एसिड्स होते हैं वो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए वीक एसिड आपका क्या हो गया, वीक एसिड्स लाइक क्या बताइए, CH3COH। ठीक है, उसके बाद बताइए और क्या होता है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो आपके वीक एसिड्स होते हैं। सो दिस इज HCN, दिस इज आल्सो योर वीक एसिड, देन योर H3PO3 वीक एसिड। तो ये क्या है, दिस ऑल आर वीक एसिड्स। ये क्या है, ये आयंस के रूप में आएंगे, पर आयंस की संख्या बहुत कम बनेगी। मान लीजिए 10 मॉलिक्यूल ऑफ आपने एसिटिक एसिड लिया, तो हो सकता है कि उसमें से 2 ही मॉलिक्यूल H+ एंड एसिटेट आयन के रूप में दिखे, बाकी का 8 जो मॉलिक्यूल होगा वो एसिड के रूप में आपके मॉलिक्यूलर फॉर्म में रहेगा, आयन के फॉर्म में नहीं जाएगा। ठीक है। सो क्या है वीक एसिड का मतलब, जैसे मैंने आपको रिएक्शन लिख देता हूँ, CH3COOH क्या है, एक्वस फॉर्म में डाला जब भी आपने इसको, तो क्या हुआ, ये इसके कुछ मॉलिक्यूल, बहुत ही कम मॉलिक्यूल किसमें बदल गए, CH3COO नेगेटिव, दैट इज एसिटेट आयन, एक्वस मेडियम एंड H+। सो ये क्या है, इनकी जो संख्या है काफी कम हुई है। मैं आपको बताऊंगा कि कैलकुलेशन कैसे करना है, सारी चीज तो बताऊंगा ही। तो क्या है, ये जो रिएक्शन हो रहा है इसमें क्या है कि आपका बहुत ही कम हुआ है, बहुत ही जो मॉलिक्यूल्स है, कम मॉलिक्यूल्स आपके इस रूप में बदले हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने जो एरो डाला है, अगर मैं इसको हटा भी दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो रिएक्शन है काफी छोटा होगा, ये जो रिएक्शन है काफी छोटा होगा, सिमिलर ये जो रिएक्शन है काफी छोटा होगा। ठीक है, बैकवर्ड रिएक्शन आना इसको पसंद नहीं करता, अगर एक एरो दूं तो भी चलेगा। ओके, पर यहाँ पे आपको क्या है कि प्रॉपर इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये क्या है, आयंस ग्रुप में टूट गया है। यहाँ पे क्या है, ये बैकवर्ड रिएक्शन आराम से आ जाता है। ठीक है। उसके बाद क्या है, जितने भी वीक एसिड्स हैं, ऑल एक्सेस वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्यों, क्योंकि उनके पास जो है इलेक्ट्रॉन, उनके पास जो है आयनिक स्पेसीज की संख्या बहुत ही कम है। यहीं पे आप बात करते हो किसकी, आयनिक, यहाँ से आयनिक इक्विलिब्रियम। जनरली जो आयनिक इक्विलिब्रियम है वो वीक सब्सटेंस के साथ है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ज्यादा बात करते हैं। आयनिक इक्विलिब्रियम, भैया यहाँ पे इक्विलिब्रियम मेंटेन की गई है, बंदा आयनिक है तो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें। यहाँ पे आयनिक तो है पर इक्विलिब्रियम नहीं हो पा रहा है सही से, तो ज्यादा बातें इनकी नहीं करते हैं। बातें आप हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही करते रहोगे पूरे आयनिक इक्विलिब्रियम में। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी हैव वीक एसिड, देन वीक बेस। जितने भी वीक बेस हैं सब के सब क्या है, आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। वीक बेस में बात कर लीजिए किसकी, जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसके अलावा और बताइए कोई आपके पास बता सकते हैं क्या, जो आपके जितने भी स्पैरिंगली वीक बेस हो गया, स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स। ठीक है, जो भी स्पैरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दे एक्ट एज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे मान लीजिए कि आपका AgCl है,
या इसके बाद AgBr है, देन AgI है, देन मान लीजिए कि PbCl2 है, फिर मान लीजिए कि आपके पास क्या है Ag2Cl2 है, या मान लीजिए Ag2SO4 है। ये सारे सब्सटेंस जो हैं, ये सारे जो स्पीशीज हैं, ये सारे सॉल्ट्स जो हैं वो क्या ऐड करते हैं, वो वीक बेस वीक इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। क्यों? क्योंकि पार्शियली आयोनाइज होते हैं, पूरा का पूरा आयोनाइज नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि जितने भी सब्सटेंस हैं ये क्या है, वीक। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, सो जब हमने वीक एसिड्स, वीक बेस के बारे में जाना, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में जाना, तो आपको पता चल गया कि जितने भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो क्या है, कंप्लीटली डिसोसिएट कर जाते हैं और कंप्लीटली आयंस के रूप में आपको वो दिखते हैं। सिमिलरली अगर बात करें आप इसके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो ये क्या है, ये पार्शियली आयोनाइज करते हैं। इनका जो आयोनाइजेशन कांस्टेंट जो होता है, इसका अगर आप अल्फा के बारे में बात करो, डिसोसिएशन जो आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो बहुत कम होता है, अराउंड 10%, 15% के आसपास होता है, 20% के आसपास होता है। तो बातों का ध्यान रखेंगे। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो किसके रूप में दिखते हैं, या तो वीक एसिड्स होंगे, वीक बेस होंगे, या स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट्स होंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखेंगे कि कौन क्या है। ठीक है, जैसे ही आपने वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बात की तो हम क्या करते हैं, आयोनाइजेशन कांस्टेंट, याद है आपने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात की थी, और अभी अभी हमने डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर भी लिखा। ठीक है, तो क्या है, आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करते हैं। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ weak acid and weak base। ठीक है, तो इसकी बात कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स टेक सिंपल एनीथिंग, सिंपल बेसिक कोई सिंपल नॉर्मल मॉलिक्यूल लेते हैं। लेट्स टेक AB। सो AB कोई मॉलिक्यूल है, जब आप उसमें एक्वस मीडियम डाला, दिस इज द वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। AB इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट। ओके, सो दिस AB इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। जब इसको आपने एक्वस मीडियम में डाला तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, ये आपका आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। ठीक है, आयोनाइज होकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा A पॉजिटिव, और क्या बनाएगा, B नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे। AB जब है एक्वस मीडियम है, जब इसको आपने डाला तो आयोनाइज होके, ये अभी भी आयन बना है तो आयोनाइज इसलिए बोलते हैं, तो आयोनाइज होके A पॉजिटिव B नेगेटिव बनाए। ओके, अब क्या इसका लिखते हैं, इसको क्या है, K डालते हैं। व्हाट इज दिस, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और इसी को आप क्या बोलते हो, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप क्या बोलते हो, KI, आयोनाइजेशन कांस्टेंट बोलते हो। ठीक है, सो व्हाट एक्जेक्टली इज दिस, आपका जो AB रिएक्शन है, दिस पार्टिकुलर रिएक्शन इज हैपनिंग देयर, दिस इज AB in aqueous medium, what we are getting different ions, और वो डिफरेंट आयंस हैं, और जब ये इक्विलिब्रियम अटेन कर लिया है तो हमने लिखा, लेट्स राइट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, व्हाट दैट, A पॉजिटिव देन B नेगेटिव। ओके, सो थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, KI, व्हाट इज दिस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ठीक है, ओके, सो ये जो है एक्सप्रेशन है, तो बेसिक एक्सप्रेशन है, लिखते हैं। अब याद है हमने लिखा था, लेट्स टेक T इक्वल टू 0 पे ये 0 था, सॉरी ये इसका कॉन्सेंट्रेशन C था, ये 0 था, ये 0 था। कब, T इक्वल टू 0 पे इक्विलिब्रियम पहुंच गए तो क्या हो गया, C इंटू 1 माइनस अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया, ये C अल्फा हो गया। ये बेसिक चीजें तो हम कर ही रखे हैं। तो चार चीजों को यहाँ पुट करते हैं, क्या आ जाएगा बताइए। जब आप यहाँ पर रखोगे तो दिस इज C अल्फा बाय C इंटू 1 माइनस अल्फा, C कैंसिल हो गया, so you are getting C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। और अगर आपको अल्फा फाइंड करना है, टू फाइंड अल्फा you have to solve what, this one, so what is this, ki is equal to क्या आ गया है, C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आ गया। ठीक है, दिस इज आपको याद नहीं रखना, आपको ये तरीका करना है, आपको सिंपल आ जाएगा, क्योंकि कभी कभी एक्सप्रेशन चेंज हो सकते हैं। अगर AB 2 दे दिया है तो ये A पॉजिटिव एंड 2B नेगेटिव बनेगा, तो यहाँ C अल्फा, यहाँ डिफरेंट चीज आएगी। तो आपको क्या है, तरीका लिखने आना चाहिए। तरीका लिखने के बाद क्या है, KI दैट इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज इक्वल टू
सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। कैसे सी अल्फा आया पता, सी अल्फा मल्टीप्लाई सी अल्फा, एक सी से एक सी गया तो सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा आ गया। ओके, अब क्या है, अगर आपको अल्फा निकालना है, अल्फा निकालना है तो चीजों को ध्यान में रखेंगे। अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अल्फा निकालना है तो आपको के आई गिवन होगा, आपको इस एक्सप्रेशन को सॉल्व कीजिए। आप बोलोगे सर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है तो इसके दो तरीके हैं। अगर अल्फा की वैल्यू क्या है, बहुत 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 कम है, अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा कम है, तो आप क्या करने वाले हो, 1 माइनस अल्फा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। क्यों, क्योंकि आप अल्फा को क्या नेग्लेक्ट कर रहे हो, अल्फा को नेग्लेक्ट कर रहे हो 1 के रिस्पेक्ट में, 1 के रिस्पेक्ट में अल्फा को नेग्लेक्ट कर रहे हो। तो ये जो एक्सप्रेशन है वो कैसा बन जाएगा, के आई इज इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ के आई बाय, ठीक है, तो अंडर रूट ऑफ के आई बाय सी। तो अगर आपका अल्फा है वो बहुत ही कम है, उस अल्फा दैट इज, लेट्स टेक अल्फा की वैल्यू अगर मान लीजिए कि 0.05, अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम है या 0.05 है या उससे कम है, तो आप क्या कर सकते हो, अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। अदरवाइज अगर आपका अल्फा वैल्यू ज़्यादा है, मान लीजिए 15, 20, 30% है, तो प्लीज़ आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते हो, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, क्या, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2, करेक्ट, ये होता है ना। ओके, तो ये आपको सॉल्व करना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए और फिर सॉल्व कीजिए, तभी जाकर निकाल पाओगे। अगर मान लो कि आप बोलोगे सर कैसे करेंगे इसको, बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन सॉल्व करना जरूरी है। व्हाट आई एम सेइंग, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट अल्फा, ये अप्रोक्सीमेशन ले लीजिए। आप क्या कीजिए, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आप अप्रोक्सीमेट ले लीजिए, अप्रोक्सीमेट कर लीजिए। जब अप्रोक्सीमेट करने के बाद अल्फा को फाइंड कीजिए, क्या अल्फा 5% से ज्यादा है, अगर 5% से ज्यादा है तो हाँ जी आपको ये काम करना पड़ेगा, अगर 5% से कम है तो यू शुड बी हैप्पी कि आपको इसी से काम चल जाएगा। और मैक्सिमम खासकर आपके नीट के जितने भी प्रश्न हैं वो यहाँ से ही बनते हैं, आपको खुश हो जाना चाहिए कि इसकी बात वो ज्यादा करता ही नहीं है, तो जितने प्रश्न हैं वो यहाँ से बनते हैं। यानी अल्फा की वैल्यू बहुत ही कम होती है, अल्फा क्या होता है 5% से बहुत कम होता है। आराम से आप क्या है अंडर रूट ऑफ के आई बाई सी कर सकते हो। और आपको निकालना हो, मान लो कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना हो, अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए निकालना हो तो कैसे निकालोगे, कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या है, सी अल्फा है, सी अल्फा है, एंड व्हाट इज सी अल्फा, व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट ऑफ के आई बाई सी। आप सी को अंदर ले जाइए तो क्या होगा, अंडर रूट ऑफ के आई इनटू सी, ठीक है। तो क्या है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर अल्फा निकाल लिया तो आप कंसंट्रेशन आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। दिस इज ट्रू फॉर वीक एसिड एज वेल एज वीक बेस। मान लीजिए मैं बात करता हूं किसकी, एसिटिक एसिड की, CH3COH गिविंग यू, ठीक है, एक्वस मिल। तो क्या हो जा रहा है, CH3 आपके एक्वस, दिस अगेन इट हैज टू बी एक्वस मीडियम। मान लीजिए एक प्रश्न ही बना लेते हैं हम, क्या इसकी के वैल्यू गिवन है, इसकी के वैल्यू गिवन है, लेट्स के आई इज गिवन एज व्हाट, लेट्स टेक 1.8 into 10 to the power -5, this key value is given. Okay, now what else is given, c is equal to 0.1 molar, c is 0.1 molar given है। what is the concentration of आपका H plus ion at equilibrium, calculate concentration of H plus ion at equilibrium with given information। कैसे बनाएंगे, with given information कैसे बनाएंगे कि calculate the H plus ion concentration is at equilibrium, हमको पता करना है। कैसे बनाएंगे बताइए, सिंपल सा प्रोसेस है। at t is equal to 0 यहाँ पे कॉन्स्टेंट c था, 0 था, यही लिख रहे हैं। at t is equal to t equilibrium पे क्या था, c into 1 minus alpha, then this is c alpha, ki क्या हो जाएगा बताइए, ki का एक्सप्रेशन लिखते हैं, concentration of CH3COO negative, concentration of H plus divided by concentration CH3COO। ओके, यही तो है। तो क्या हो जाएगा, CH3COH क्या हो जाएगा बताइए, C अल्फा, दिस इज क्या हो जाएगा, C अल्फा, ये क्या CH3 का क्या है कॉन्सेंट्रेशन, C into 1 minus alpha,
ये एक्सिस किया, सो सी अल्फा स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। अब क्या है कि क्या हो गया, ki इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा है। मैं क्या करूंगा, मैं सीधा मानूंगा कि अल्फा इज वेरी वेरी लेस। अल्फा को मैं मान लेता हूं, मान के देखता हूं क्या अल्फा की वैल्यू 0.05 से कम आ रही है। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, आई शुड बी द हैप्पीएस्ट पर्सन। क्यों? क्योंकि ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है, अदरवाइज आपको माथे टिकाना पड़ेगा और आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना पड़ेगा। चलिए तो देखते हैं व्हाट इज दिस वैल्यू। आपको मैंने जब अल्फा की वैल्यू इज लेस देन 1 है तो क्या हो जाएगा, दैट मीन्स कि 1 माइनस अल्फा इज क्या हो जाए, अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं 1 के बराबर कर सकते हैं। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, कि आई क्या हो जाएगा, पुट द वैल्यूज की आई की वैल्यू 1.8 into 10 to the power -5, दैट इज सी इज गिवन, व्हाट इज सी इज गिवन 0.1 10 to the -1, दैट इज अल्फा स्क्वायर करेक्ट बाय 1। ओके ये है ओके। सो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ki by c होता है। सो क्या अंडर रूट ऑफ 1.8 into 10 to the power -5 by 10 to the power -1, so under root of 1 this is 10 to the power -2 into under root of 1.8. so what exactly this value is approximately this 1.8 approximate please, कैसे अप्रोक्सीमेट करेंगे इसको, 13 का रूट क्या होता है आपको पता है, 30 का तो 169 आई थिंक करेक्ट, और अगर 14 का रूट करते हैं तो क्या होता है, 14 का रूट करते हैं तो 196। सो क्या है, दिस इज 13 और 14 के बीच में है ना, तो क्या हम लिख सकते हैं 1.34 to 1.35 into 10 to the power -2, so this is 0.0135। so what this alpha is coming to give 0.0135, हाँ 0.05 से कम है। so अब हमें खुश हो जाना चाहिए कि हाँ हमारा जो अप्रोक्सीमेशन है वो सही है, हमारा अल्फा क्या है हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको निकालना हो क्या सी अल्फा निकालना हो, कॉन्सेंट्रेशन CH3 COOH का कॉन्सेंट्रेशन निकालना, क्या होगा सी अल्फा हो जाएगा C is 0.1 into 0.0135, सो व्हाट एवर यू वेट 0. क्या आ जाएगा बताइए, आपका आ जाएगा 0.00135। ठीक है मोलार। सिमिलरली आपका H प्लस दिस इज ऑल्सो इज इक्वल टू H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, क्यों ये दोनों तो बराबर है, सी अल्फा तो सी अल्फा इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा 0.00135। एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड प्लीज, CH3COOH का कॉन्सेंट्रेशन बताइए 1 माइनस अल्फा, दिस इज C into 1 माइनस अल्फा। ठीक है, सो C into 1 माइनस अल्फा है, सो C into व्हाट इज C is 0.1, C is 0.1 ओके। एंड 1 माइनस अल्फा अगर हम इसको घटाएंगे तो क्या है, अप्रोक्सीमेशन हमने क्या माना था कि ये 1 के बराबर है, सो ये तो 1 के बराबर है, सो क्या हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली 0.1 आ जाएगा। क्योंकि एसिटिक एसिड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज ज्यादा नहीं होगा, और अप्रोक्सीमेटली क्या आ जाएगा 0.1 मोलार आ जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन आप इस तरीके से आराम से कर सकते हो। क्या है आपको समझना पड़ेगा कि क्या अल्फा हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, करने का सिंपल तरीका है कि नेग्लेक्ट कर देंगे, नेग्लेक्ट करने के बाद चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे क्या हमारा जो अल्फा वैल्यू है वो 0.05 से कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि आपको फिर ये मेथड अपनाना पड़ेगा। कम आ रहा है इसका मतलब क्या है कि चलो भैया काम हो गया है, हम सब सुरक्षित हैं। ठीक है, इसको जल्दी से नोट करते हैं, फिर हम अगले प्रश्न को देखेंगे। ओके चलिए इन दोनों प्रश्नों को थोड़ा सा ट्राई कीजिए। क्या है पहला प्रश्न, कैलकुलेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज एट इक्विलिब्रियम। क्या है AB एक्वस है आपके A पॉजिटिव B नेगेटिव दे रहा है। आपके पास दो केस हैं, पहला केस है कि आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट इज Ki वैल्यू 10 to the power -5 एंड द अनदर केस 2 इज 10 to the power -2। सो दो डिफरेंट केस हैं, एक में आपका 10 to the power -5 है और दूसरा केस है 10 to the power -2 है। तो आपको दोनों केस में क्या बताना है, आपको कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ईच स्पीशीज बताना है। ठीक है, तो एक बार आप वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लीजिए, मैं आपको बताता हूँ क्या है। एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा C into 1 minus अल्फा C अल्फा। ठीक है, यही तो लिखते हैं, तो लिखते हैं क्या हो जाएगा Ki क्या होता है, Ki इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए C अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। ये तो तरीका है। हम क्या बोलते हैं कि लेट अस अज्यूम और नेगलेक्टिंग क्या अल्फा इज, ठीक है, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा अल्फा -1 माइनस अल्फा अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो मैंने क्या बोला, मैंने बिना कुछ सोचे समझे सीधा मान लिया।
अल्फा की वैल्यू क्या होगी, 1 से काफ़ी कम होगी, यानी अल्फा को नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो अगर अल्फा को नेगलेक्ट किया जा सकता है तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर -5 इज इक्वल टू क्या होगा, सी अल्फा स्क्वायर। सो हमें अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बताइए, अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर -5 डिवाइडेड बाय व्हाट इज द सी वैल्यू गिवन, डू वी हैव सी, do we have C, I think 0.1 now, do we have C, yes 0.1 correct, sorry 0.1, so C की वैल्यू है 10 टू द पावर -1, सो ये क्या आ रहा है 10 टू द पावर -2 आ रहा है, करेक्ट, 10 टू द पावर -2 आ रहा है। सो अल्फा की वैल्यू इज 0.01, यस दिस इज लेस देन 0.05, सो हमारा अप्रोक्सीमेशन सही है। और अगर हमारा अप्रोक्सीमेशन सही है तो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या आ जाएगा सी अल्फा दैट इज इक्वल टू 0.1 इंटू 0.01 दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.001 मोलर, एंड दिस इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आपका बी नेगेटिव है, बी का भी कॉन्सेंट्रेशन वही आ जाएगा। एंड व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी का कॉन्सेंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, क्या थोड़ा सा चेंज करेगा क्योंकि क्या है कि ए माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, सॉरी 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1, सो सी रिमेन्स 0.1। सो आपका अगर आपका पहला केस लेते हैं तो क्या हो जा रहा है, आपका कॉन्सेंट्रेशन सेम ही जा रहा है और हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी। दूसरा केस लेते हैं, दूसरे केस में भी क्या है, सेम ही एक्सप्रेशन लिखेंगे, एक्सप्रेशन तो सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से अप्रोक्सीमेशन मारता हूं, अगर मैं फिर से अप्रोक्सीमेशन मारता हूं तो क्या होगा, 10 टू द पावर -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अल्फा स्क्वायर। सो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 10 टू द पावर -2 बाय 10 टू द पावर -1, सो दिस इज कमिंग टू बी अंडर रूट ऑफ 1 by 10, so this is approximately 1 under root of 1 by 3.4, correct? So देखो मैं 3 point some, let's take 3 point some आएगा, let's take 3.1 आ रहा है, so not 3.1, so really so this is 0.31, हाँ 0.31 आ रहा है। तो अगर आपने देखा अल्फा की वैल्यू 0.31 आ रही है, यानी कि जो हमने अप्रोक्सीमेट किया है वो गलत किया है। हमने अल्फा की वैल्यू 0.05 से ज्यादा है भाई, बहुत ही ज्यादा है, तो हमने जो अप्रोक्सीमेशन किया है वो गलत किया है, यानी कि समय आ गया है कि थोड़ी सी मेहनत की जाए, यानी कि अब हमें थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब मेहनत करना है तो कर लेते हैं मेहनत, क्या करना है मेहनत देखते हैं क्या लिखा है, कहाँ गया हमारा, ये है। सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट केस 2, जहाँ पे क्या है कि आपका के की वैल्यू क्या है, ज्यादा है। So 10 to the power -2 is equal to क्या आ जाएगा, c अल्फा स्क्वायर दैट इज 10 to the power -1 इनटू क्या है अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा। यहाँ पे आप इसको आप अप्रोक्सीमेट नहीं कर सकते हो, तो ये से ये गया, सो व्हाट यू आर गेटिंग, ये नीचे चला जाएगा, सो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताएंगे क्या, 10 अल्फा स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू 10 अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा -1 इज इक्वल टू 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आया है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको सॉल्व कीजिए तभी जाकर आपको अल्फा मिलेगा। सो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -b -1 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac, सो b स्क्वायर इज 1 स्क्वायर माइनस प्लस हो गया 4ac यानी कि 40 बाय 2a वेज 2, सो 20। सो क्या आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा, माइनस तो ले नहीं सकते, कांस्टेंट अल्फा आपका माइनस में हो नहीं सकता है, अल्फा हमेशा पॉजिटिव होना, तो पॉजिटिव साइन लेते हैं। सो क्या आ जाएगा बताइए, -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 41 बाई 20। सो क्या है -41 था 6 पॉइंट सम वैल्यू 6 into 6 36, 7 into 7 41। हम हमेशा अप्रोक्सीमेट करेंगे, नो आपको चिंता नहीं करना है कि भैया एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, प्लीज नो वरीज, ओके। सो क्या आएगा, थोड़ा सा इसको हल्का सा और बढ़ा दिया जाए, सो what we are getting alpha is equal to minus, let's take 6.3 और 6.4 लिख लेते हैं, so -1 plus 6.4 by 20, so this is 5.4 by 20। so what is this, alpha is coming to be, alpha कितना आएगा बताइए, alpha आ जाएगा, थोड़ा सा डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 2.7, so 0.27 approximately 0.27 अल्फा की वैल्यू आई, यानी कि हमने जो कैलकुलेट किया था तो गलत किया था ना भाई, गलत किया था ना, तो ये क्या है गलत किया है, इसका ध्यान रखेंगे। जब अल्फा की वैल्यू 5% से ज्यादा हो तो अल्फा क्या होगा, आप नेगलेक्ट कर सकते हो, 1 माइनस अल्फा को आप 1 लिख सकते हो, अदरवाइज आपको प्रोसीजर करना पड़ेगा।
ओके, तो प्रोसेस करने के बाद अब निकल के आ गया है अल्फा। जब अल्फा निकल के आ गया है तो कंसंट्रेशन इज ए, ए का कंसंट्रेशन इज इक्वल टू सी अल्फा दैट इज इक्वल टू 0.1 इनटू 0.27, सो क्या होगा 0.027 मोलार। एंड दिस इज आल्सो द कंसंट्रेशन ऑफ सॉरी बी नेगेटिव, ये भी आपका बी नेगेटिव का भी है। एंड व्हाट यू कैन सी कंसंट्रेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा 1 C into 1 minus अल्फा, सो C is 0.1 और ये कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा 6, सो क्या हो जाएगा 0.063 मोलर। ओके, सो ये बेसिक कैलकुलेशन है। समझना क्या था यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है हमको क्या समझना है, मैं हमेशा आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली कौन सा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट होता है। कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना आना चाहिए, इसके बाद ये प्रोसेस ये लिखने आना चाहिए, फिर नेगलेक्ट कहाँ पे करना ये आना चाहिए। नेगलेक्ट तो कर दीजिए, सीधे नेगलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद चेक कीजिए क्या आंसर सही आ रहा, क्या जो अल्फा वैल्यू 0.05 से ज्यादा है ये कम है। अगर कम है तो बहुत अच्छी बात है, आपने आंसर सही लिया है। अगर ज्यादा है तो आपको जो नॉर्मल प्रोसीजर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखिए, फिर उसको सॉल्व कीजिए, फिर आंसर लें, इसका ध्यान रखें। चलिए एक ये प्रश्न क्या है, 0.2 मोलर फॉर्मिक एसिड है, सो लेट्स राइट फॉर्मिक एसिड HCOOH इक्विलिब्रियम HCOO फॉर्मेटाइन प्लस H प्लस ऑल आर इन एक्वस मीडियम। ओके, सो क्या है 0.2 मोलर है, सो दिस इज 0.2 मोलर, लेट्स राइट दिस इज 0.2 एट t इज इक्वल टू 0, एट t इज इक्वल टू t इक्विलिब्रियम पे क्या होगा 0.2 माइनस क्या होगा 0.2 माइनस 0.2 अल्फा, दिस इज 0.2 अल्फा, दिस इज 0.2 अल्फा। And what is the ionization ionized goes आ रहा है 3.2% time. What is you know that alpha into 100 is equal to percent. It means क्या होगा percent by 100 is equal to alpha. So please find alpha 3.2 divided by 100. This is the alpha you are getting. Okay. So समझ में आया क्या, मैंने अल्फा कैसे निकाल लिया परसेंटेज आयोनाइजेशन से। अल्फा into 100 is equal to percent, जो मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया था। Find alpha 3.2 divided by 100. ओके, अब क्या पूछ रहे हैं आयोनाइजेशन कांस्टेंट ki पूछ रहे हैं, लिखते हैं ki लिख देते हैं जल्दी से। ki का एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, दिस वन, सो 0.2 अल्फा मल्टीप्लाई विद 0.2 अल्फा डिवाइड बाय 0.2 इनटू 1 माइनस अल्फा, एक से एक गया, सो वी हैव 0.2 इनटू अल्फा स्क्वायर बाय 1 माइनस अल्फा, ठीक है। और आपको क्या दिख रहा है कि ये जो वैल्यू आ रही है 0.032 आ रही है, यानी कि 0.05 से कम है, यानी कि अल्फा नीचे वाला नेगलेक्ट किया जा सकता है। सो व्हाट एग्जैक्टली वी आर गेटिंग ki इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0.2 इनटू अल्फा स्क्वायर 0.032, और लेट्स राइट इट 3.2 इनटू 10 टू द पावर -2 का होल स्क्वायर बाय 1। सो क्या आ जाएगा बताइए प्लीज, this coming to be this 3.2 is approximately 10 I think। 3.2 का जो होल स्क्वायर है, सिर्फ हमेशा याद रखिए, आपको जरूरी नहीं कि आपको पूरा कैलकुलेशन करना है। सो 3.2 का जो आपका स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर 9, सो 3.2 का स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली 10, सो यहां से आया 10, सो 0.2 into 10 is 2 into 10 to the power -4, so 2 into 10 to the power -4 is the क्या है आपका आयोनाइजेशन कांस्टेंट है। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करते रहिए, मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रहे कि आप एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन को पढ़िए, फिर समझिए और फिर करिए, ठीक है। तो इसमें आयनिक इक्विलिब्रियम कोई बड़ी तोप नहीं है, जब से कुछ किसी से हिलेगा नहीं, बहुत ही आसान है। जितने प्रॉब्लम्स कीजिए उतना कॉन्फिडेंस बढ़ता है, ठीक है। तो चलिए आज का जो लेक्चर है यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपके अगले नए लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।